Let us come to the main topic now. Matthew chapter 26, verse 36 to 46. Just 15 minutes of yours. Or 10 minutes. That's it. Matthew chapter 26, verse 36 to 46. Can you put it? Okay. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to the disciples, Anthony, you can read it in the. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to the disciples, sit here while I go and pray over there. फिर यीशु ने उनके साथ उस स्थान पर आया जो गेत्सेमनी कहलाता था और उसने अपने शिष्यों से कहा, जब तक मैं वहां जाऊं और प्रार्थना करूं, तुम यहीं बैठो. Okay, next. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed. फिर यीशु पतरस और जब्दी के दो बेटों को अपने साथ ले गया और दुख तथा व्याकुलता अनुभव करने लगा. Next. And then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful even to death. Stay here and watch with me. फिर उससे उनसे कहा, मेरा मन बहुत दुखी है, जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे. तुम मेरे साथ यही ठहरी और सावधान रहो. He wanted somebody. यीशु मसीह को कोई चाहिए था साथ में उस समय, क्योंकि उसका मन इतना विचलित हो गया था. He was going through certain pain in his life. Come on, the next verse. He went a little further and fell on his face and prayed, saying, oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो धरती पर झुककर प्रार्थना करने लगा. उसने कहा, हे मेरे परम पिता, यदि हो सके तो यातना का यह प्याला मुझसे टल जाए. फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही कर. Then he came to the disciples and found them sleeping and said to Peter, what, could you not watch with me 1 hour? फिर वो अपने शिष्यों के पास गया और उन्हें सोता पाया. वो पतरस से बोला, सो तुम लोग मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? क्या हमारे देश में कोई है? प्रभु कहता है, verse 41, watch and pray lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो. तुम्हारा मन तो वही करना चाहता है जो उचित है, किंतु तुम्हारा शरीर दुर्बल है. यहाँ पे किसका शरीर है जो मन को बोलता है सो जाओ? हाँ, यहाँ पे भी वही है. Again, the second time he went away and he prayed, saying, oh my Father, if this cup cannot pass away from me, unless I drink it, your will be done. एक बार फिर उसने जाकर प्रार्थना की और कहा, हे मेरे परम पिता, यदि यातना का यह प्याला मेरे पिए बिना टल नहीं सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो. And he came and he found them asleep again, for their eyes were heavy. तब वो आया और उन्हें फिर सोते पाया. वे अपनी आंखें खोल नहीं रह सकी. And he left them and he went away again and he prayed the third time, saying the same words. See, God, you want now when Jesus is praying 3 times, यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना कर रहा. मतलब वो चाहता था कि पिता कहे, ओके यीशु, ओके तुम्हारे, ओके मत जाओ क्रूस पे. Maybe I think that he wanted God to tell him, okay Jesus, it's too tough for you. Okay, leave it. I will have a different method to do it. But he went 3 times. यीशु मसीह 3 बार गया पिता के सामने. सो वो उन्हें छोड़कर फिर गया और तीसरी बार भी पहले ही की तरह उन्हीं के शब्दों में प्रार्थना की. जरूरत था 3 बार प्रार्थना करने के लिए. सेम प्रेयर्स. यीशु मसीह, the one who has created this world, was it important for him to pray 3 times? But he prayed. जरूरी था उसको 3 बार प्रार्थना करने के लिए, लेकिन उसने प्रार्थना किया. Then he came to his disciples and he said to them, are you still sleeping and resting? Behold, the hour is at hand and the Son of Man is being betrayed into the hands of the sinners. फिर यीशु अपने शिष्यों के पास गया और उनसे पूछा, क्या तुम अब भी आराम से सो रहे हो? सुनो, समय आ चुका है जब मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों सौंपा जाने वाला है. Last verse. Rise, let us be going. See, my betrayer is at hand. उठो और चले, देखो मुझे पकड़ने वाला जा रहा. Sometimes we want to do certain things which is good, but we are not able to do all those things even though it is good. हम लोग कभी-कभी कुछ अच्छा करने के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा ये जो शरीर है वो बहुत कमजोर है, बहुत सारा कमजोर है.
आप लोग को जब भी आपका एक कोई मित्र है ना, कोई सच कोई झूठ बोलता है, आपको पता है कि वो व्यक्ति झूठ बोलता है, तो क्या आप उसके साथ तभी खड़ा हो जाता है? नहीं भाई, ये आप झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई बोलो या सत्य बोलो। नहीं, हम नहीं बोलते। We just walk away from that place. कभी कभी ना हम लोग डिप्लोमेटिक बनते हैं। डिप्लोमेटिक मतलब हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, हम बीच में। And then sometimes we don't do certain things because we do not trust God. हम बहुत सारा समय हम झूठ क्या है बताओ? झूठ। What is a lie? Tell me what is the language of the devil? शैतान का भाषा क्या है? झूठ। शैतान का भाषा क्या है? झूठ बोलना। And sometimes we know it is the lies. We know it is not the right thing. Sometimes we tell lies to make ourselves right, so that we stand right in the person, and we say all those lies because we do not believe that God will remove out from that situation. हम लोग कभी-कभी ना हम लोग झूठ का सहारा लेते हैं, क्योंकि हम हमारे प्रभु पे हम विश्वास नहीं करते कि वो हमें उस चीज से हमें बाहर निकालेगा। तो उस समय हम लोग कौन सा हथियार हम लोग यूज करते हैं? कौन सा हथियार बताओ? कौन सा हथियार हम लोग यूज करते हैं? झूठ का हथियार। मतलब हम लोग शैतान के साथ हम लोग जाते हैं। हम लोग शैतान के साथ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एट द गार्डन ऑफ गेत्सेमनी की गार्डन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के अंदर इतना टेंशन था, इतना स्ट्रेस था, और वो इतना टेंशन और इतना स्ट्रेस में वो उस गार्डन में गए। उस गार्डन में जाके वो प्रार्थना कर रहा था। किस चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहा था बताओ? इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस। And what was the word he said? My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. मैं मर जाऊंगा, इतना स्ट्रेस उसके जीवन में था। The scientific ways it has been proved. साइंस में प्रूव हो चुका है कि अगर आपको इतना स्ट्रेस होता है ना, तो स्ट्रेस की वजह से you get sweat and blood, it comes out together. खून और आपका पसीना एक साथ छूटता है। मतलब your arteries, your nerves, they are under so much of stress that they break it out. वो टूटता है। तो at this point Jesus was going that. यीशु मसीह इस समय उस दौर में वो जा रहा था। सोचो क्यों यीशु मसीह इस स्ट्रेस में जा रहा था? क्योंकि उसको पता था कि दुनिया का पूरा पाप उसके ऊपर होने वाला था। I don't know if here is going to stress. King David, the word of God says in Psalm 42, when he was under so much of trouble, his own sons tried to betray him. What did he say? उसने क्या कहा? Oh my soul which is so downcast. उसने कहा कि हे मेरे जो मन जो इतना उदास है, क्यों इतना उदास है? तो एक दाऊद राजा जो किंग ऑफ किंग्स था उस समय का, वो अगर ये चीज से जा सकता है, यीशु मसीह जा सकता है, तो क्या हम नहीं जा सकते हैं? What is the spirit of depression? डिप्रेशन का मतलब क्या है? तनाव, इतना स्ट्रेस। और अभी हम देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। इस दुनिया में होने की वजह से कारण कितने लोगों का जॉब्स छूटा हुआ है। Today only Abhishek was telling me when I was standing there. How many people? 12,000 लोगों को, वो लोग थर्सडे को काम पे गए और फ्राइडे सुबह आज उनको मेल मिला है कि 12,000 लोगों को काम से निकाला गया है। क्या उनका कुछ भी नहीं होगा? उनका बहुत सारा प्लान्स रहेगा ना, कुछ भी होगा तो क्या ये लोग स्ट्रेस में नहीं जाएंगे? कितना स्ट्रेस होगा उनके जीवन में। तो वही कारण हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी वो स्ट्रेस में गया। तो अगर यीशु मसीह स्ट्रेस में जा सकता है, तो क्या हम स्ट्रेस में नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। तो
तो उसका छुटकारा क्या है? उसका how will you come out of this? Many people have stress in the workplace, stress in the school, stress in the office, anxiety about the future. कल क्या होगा? इतना सारा चीज हो रहा है, बॉर्डर्स बंद हो रहा है, ये बंद हो रहा है, वो बंद हो रहा है, क्या हमारा कल का क्या है हमारा? Do you know anything? No, Jesus knows what. क्योंकि यीशु मसीह आपके कल में जा चुका है। यीशु मसीह उस सूली पे मरने के कारण यीशु मसीह आपके कल में जा चुका है। Do you believe? क्या आप विश्वास करते हो? हाँ, यीशु मसीह वचन कहता है कि till today I have not seen the righteous people begging for bread. वचन कहता है कि मैं आज तक मैंने नहीं देखा है कि धर्मी लोग खाने के लिए प्रार्थना क्या बोलते हैं? बेगिंग को क्या बोलते हैं? भीख नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते हम लोग भीख? क्यों नहीं मांगते हम लोग भीख? Because Jesus is my supplier. Jesus is my sustainer. यीशु मसीह है जो मेरा चरवा है, जो चरवा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह वो उसी चीज में वो भी गया है। एंड जीसस तभी उस समय जब भी वो इतना स्ट्रेस में था, उसका एक ही प्रार्थना था। क्या प्रार्थना था? उसके पिता के साथ वो बात कर रहा था। He was telling, if it is possible, take this cup from me, take this cup from me. वो कहता था, प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो ये ले ले मेरे से। बट उसका एक वर्ड था, क्या था? हाँ? तेरी इच्छा पूरी। क्या हम लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं? हम if you know in Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego, वो लोग ने भी ऐसे ही प्रार्थना किया था कि प्रभु अगर ये हमें इस लाइन के टेंस से हमें बचाए। अगर फिर भी आप नहीं बचाते हैं तो भी मुश्किल नहीं प्रभु, फिर भी हम आपकी स्तुति करेंगे। क्या हम कर सकते हैं इस समय में जब ये सब स्ट्रेस हो रहा है? क्या हम कर सकते हैं ऐसे प्रार्थना कि प्रभु जो भी कुछ भी हो जाए, प्रभु आप मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ हूँ। बस मैं ढूंढने नहीं गया था यीशु मसीह को। कौन आया मुझे ढूंढने? यीशु मसीह आया मुझे ढूंढने। क्यों मुझे ढूंढने के लिए आया हो? आप कुछ चीज के लिए ढूंढने के लिए जाते हो ना? कम ऑन टॉक टू मी। आप लोग जाते हैं ना ढूंढने के लिए कुछ चीज। क्यों? क्योंकि आप किसी को प्यार करते हो। आमीन। यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है, इसके लिए वो आया मुझे ढूंढने। And the same thing we see over here. God can save us at this moment, but the steps should be yours. Decision is yours. निर्णय आपका होना चाहिए। यीशु मसीह कितनी बार गया उसके पिता के सामने सेम प्रार्थना लेके? कितनी बार? 3 बार। क्या 3 बार? उसका क्या था? क्या उस समय पिता ने उससे बात किया? पिता शांत था। Father was quiet. Even when he went on the cross, Father was quiet. if अगर आपका पिता उस समय यीशु मसीह के साथ बात करता था, तो आज सोचो आप और मैं, हम लोग किधर रहते थे आज? हमारा क्या बोलते हैं, वो छुटकारा ही नहीं होता था। हम पापी जीवन में ही होते थे। अगर यीशु मसीह का डिसीजन यस नहीं होता था उस समय, तो आज सोचो आप किधर रहते थे आज? Faith is not God do what I want. कभी हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, हम लोग का प्रार्थना करते, प्रभु मुझे ये चाहिए, आमीन। यीशु मसीह का ये प्रार्थना नहीं था। यीशु मसीह का क्या प्रार्थना था? उसका इच्छा उसने जाहिर किया, लेकिन एंड में उसने क्या बोला? प्रभु ये मेरी इच्छा है, लेकिन आपकी इच्छा इस प्रार्थना में है। आमीन। क्या हम लोग कभी ऐसे प्रार्थना करते हैं? नहीं करते हैं। हम सिर्फ प्रभु को डिक्टेट करते हैं, लेकिन आप लोग जब एटीएम में जाते हैं ना, टिक 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 टिक, इतना पैसा आ जाओ। हम लोग ऐसे प्रभु यीशु मसीह को भी हम रखते हैं ऐसे ही। प्रभु यीशु मसीह ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, आमीन। और वो भी एक हफ्ते के अंदर
है ना, हम लोग कंडीशन रखते हैं यीशु मसीह को, कंडीशन रखते हैं हम। But understand, Jesus being God, यीशु मसीह परमेश्वर होने के नाते वो अपने पिता के अधीन में था। He was surrendering to God. He was surrendering to God. And we see over here, you know, that Gethsemane is a place where Jesus chose to be obedient. वो आज्ञाकारी बना, किसका? पिता का आज्ञाकारी बना। उसने अपनी इच्छा पूरा नहीं किया। उसने क्या किया? प्रभु आपकी इच्छा पूरा होने दो, प्रभु आपकी इच्छा पूरा होने दो। Just like we see Abraham and Isaac. इब्राहिम को प्यारा था उसका बेटा इसहाक, हाँ प्यारा था बहुत, लेकिन उसने प्रभु ने उससे कहा, पिता ने उसको कहा कि ये जगह पे जाओ, आपका बेटा को भी लेके जाओ और उसका बलिदान चढ़ाओ, और वो उसको मारने वाला भी था। अगर प्रभु वो वहां पे इंटरवीन नहीं करता था तो ये ओबीडियंस कहता है, ये ओबीडियंस कहता है। यही आपका क्या बोलते ओबीडियंस को हिंदी में? आज्ञाकारी। क्या आप लोग आज्ञाकारी है? आज का गुड फ्राइडे के दिन ये सोचने वाली थोड़ी बात है कि क्या हम प्रभु के लिए आज्ञाकारी है? इब्राहिम ओबेड, जीसस ओबेड। ओबे करने के लिए आपको कुछ कॉस्ट चुकाना पड़ता है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, क्रूस पे गया, उसने उसके खोड़े खाए, उसने he paid the cost for us. He paid the cost for us. He paid it all for us. Amen. Amen. Choose. Sometimes we have to choose. Standing alone. Sometimes you're standing alone. जब आप एकांत में कभी खड़े हो जाते हो स्ट्रेस में, ना सोचते कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मुझे ये नहीं करता है, कोई मुझे वो नहीं करता है। यीशु मसीह भी अकेला था गार्डन ऑफ गेथसेमनी में। आमेन। उसके साथ कौन कौन थे? उसके साथ चेले थे। चेलों लोग को भी वो साथ में लेके गया और उनको कहा कि मेरे साथ एटलीस्ट मेरे साथ तुम लोग बैठे नहीं है, एटलीस्ट प्रे करो। लेकिन क्या वो लोग उसके साथ थे? यीशु मसीह के साथ थे। यीशु मसीह परमेश्वर होने के नाते वो चाहता था कि उनका सपोर्ट। हम भी बहुत समय चाहते हैं सपोर्ट हमारे फ्रेंड्स के, हमारे रिलेटिव्स के, हमारे फैमिली के। कभी हमें नहीं मिलता है तो क्या हम गुस्सा होंगे? नहीं हो सकता हम लोग गुस्सा, क्योंकि ये जो जीवन है वो मेरा जीवन है। मैं कैसा चलाता हूँ यीशु मसीह के साथ, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Amen. Amen. Don't blame your circumstances on somebody else. आपका परिस्थिति जो भी होता है आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। Am I talking sense? Yeah? You don't blame your things on somebody else. It is your decisions. It is your way of walking. You have chosen that path and now you have failed. So you cannot blame anybody. क्योंकि आपने वो निर्णय लिया था। यीशु मसीह ने उसने निर्णय लिया था कि वो पूरा रात जगा रहे कि वो प्रार्थना करेगा, तो वो उनके ऊपर उसने ब्लेम नहीं किया, उन्होंने उसको माफ किया। Just like we see the illustration in 2 Timothy chapter 4 verse 16. Paul was in the prison. Correct? Paul कहाँ पे था? एक जेल में था। और जब भी और उसके जो साथी थे वो चाहता था कि वो लोग भी प्रार्थना करें, लेकिन वो लोग ने प्रार्थना नहीं किया। अकेला पीटर ने पॉल ने प्रार्थना किया। What he says? At my first defense, no one stood with me. हाँ? क्या लिखा है? Read it in Hindi. प्रारंभ में जब मैं अपना बचाव प्रस्तुत करने लगा तो मेरे पक्ष में कोई सामने नहीं आया। बस कोई आया उसके सामने? कोई भी नहीं आया, बल्कि उन्होंने तो मुझे अकेला छोड़ दिया था। परमेश्वर करे उन्हें इसका हिसाब न देना पड़े। Because somebody has not helped him, he said that may they not be क्या बोलते हो? May they not be charged against them. So we see over here, sometimes your friends will laugh at you, sometimes your friends will joke at you, but what is my today intention of talking to you? Stand on your faith. विश्वास पे खड़े रहो। If Jesus had not said yes today, nothing would have happened. If Mary
Mary, the one mother of Jesus, if she had not said yes, अगर मरियम ने हाँ नहीं कहता था, तो यीशु मसीह संसार में नहीं आता था. उसी तरह अगर यीशु मसीह ने हाँ नहीं कहता था, तो गेत्सेमनी एक पावरफुल माउंटेन नहीं होता था. यीशु मसीह हमारे नहीं होता था. तो डिसीजन इज योर्स. आमेन. निर्णय आपका है कि आप यीशु मसीह के साथ चलोगे या आप यीशु मसीह के साथ नहीं चलोगे. तो यही है गेत्सेमनी. गेत्सेमनी इज ओबीडियंस विद सरेंडर. ओबीडियंस का गेत्सेमनी का मतलब है आपका ओबीडियंस क्या बोलते हैं? आज्ञाकारी उसके इच्छा के अनुसार. आमेन. जब भी आज हम लोग प्रभु भोज में हम लोग शामिल हो गए, we will take part of the bread and the wine. लेकिन उसके पहले हम लोग जस्ट थोड़ा समय के लिए हम लोग आग बंद कर रहे हैं. And we will just reflect. When Jesus was having the last supper, जब यीशु मसीह उस upper room में था and he was having the last supper, उसने कहा कि this is my bread, this is my body, do it for me, in remembrance of me. यीशु मसीह ने कहा कि मेरे याद में आप लोग ये ले लो. आज का दिन उस समय यीशु मसीह ने ये कहा था. आज प्रभु हमसे क्या कहता है? Today also the Lord is telling us the same thing. This is the cup which is given for me. आज हमें कुछ नहीं करना पड़ता है. यीशु मसीह ने उस समय सब कुछ किया ताकि आज हम उस मेज में हम पार्टेक करके हम आशीषित बने. लेकिन यीशु मसीह उस समय उसने उसका प्राण दिया, उसका शरीर उसने दिया, उसने लहू बहाया ताकि आज हम आशीषित बने. तो यही एक अनुग्रह है. तो हम 2 मिनट के लिए शांत रहे. हम कभी कभी सोचते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे होके उसने लहू बहाया. नहीं, वो गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में ही उसने लहू बहाना शुरू किया था, वो स्ट्रेस में आके. टुडे व्हाटएवर चैलेंजेस आज आपके जीवन में जो भी चुनौती है, आप यीशु मसीह को दें. यू आर फेसिंग समथिंग इन योर लाइफ एंड यू सेइंग लॉर्ड आई डोंट अंडरस्टैंड. आप कहते प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस समय वो चीज प्रभु के हाथ में दे. और जैसे कि हम इस बात हम लेंगे, ask the Lord, even as I partake of this bread and this wine, we thank you. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि उस 2000 साल पहले आपने आपका शरीर तोड़ा, आपका लहू बहाया ताकि आज जो भी मैं इस समस्या में हूँ प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप उस सिंहासन पे बैठा है और उस सिंहासन की वजह से आज मैं जयवंत हूँ. और वो जयवंत की ओर से प्रभु हम इस बोझ में हम लेते हैं धन्यवादित के साथ. आमीन. हम रिस्पेक्ट से लेंगे क्योंकि ये हमारे लिए अभी एक ब्रेड है, लेकिन इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसका लहू बहाया है. आमीन. उसका शरीर तोड़ा है. आमीन. क्या आप मेरे साथ हैं? yes. आप हैं मेरे साथ? ओके. प्रभु ने ये उसके लिए उसका शरीर तोड़ा है. शरीर तोड़ा है. हमारे लिए आज इजी हो गया है, लेकिन यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया था इसके लिए. और इस लहू के लिए हम धन्यवाद देंगे कि इस लहू के वजह से आज मुझे छुटकारा है. टुडे आई एम फ्री फ्रॉम एवरी गिल्ट. I am free from every condemnation in Jesus' name. Just talk to the Lord. When you are partaking, just talk to the Lord. And just speak to the Lord and just tell Him, thank you Lord. जैसे कि हम पार्टेक कर रहे हैं, हम धन्यवाद दे प्रभु को उस शरीर के लिए जो थोड़ा मेरे लिए. और हम धन्यवाद दे उस लहू के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए बहाया है ताकि हम छुटकारा पा सके, ताकि हम जो प्रभु ने मेरे लिए जो आशीष रखा है वो मेरा हो सके. Lord, I thank you for this bread
Lord, which reminds me of your broken body, Lord. I thank you, Jesus, for this blood which you shed for the remissions of my sin. That because of this blood today I am free from every guilt and I'm free from every condemnation. I thank you, Jesus, for the power of the cross and the power that is there through these elements of the bread and the wine. I receive by faith the blessing. I receive by faith the healing. I receive everything that you have kept for me. In Jesus' name. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इसकी वजह से जो भी मेरा आशीष है प्रभु, मैं इस आशीष को मैं लेती हूँ यीशु मसीह के नाम में. Amen. Amen. Thank you.